الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمدللہ ہم اور آپ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور شعبان کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ اپنے آپ میں کئی اعتبار سے اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ مہینہ کافی اہمیت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ہی اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ شعبان کے مہینے میں ہی اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو اس شعبان کے مہینے میں واقع ہوئے، لہذا یہ شعبان کا مہینہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی بڑی اہمیت والا ہے۔ اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ شرعی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ شعبان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت کے سلسلے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ لوگوں کو رجب کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ رجب کا مہینہ محرم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ لوگ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن ان دونوں مہینوں کے اندر جو شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ اس شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کے حالت میں ہوں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے اور شعبان کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، سوائے چند دنوں کو چھوڑ کر کے آپ پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے اکثر حصے کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مہینے سے تعبیر کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ ان تمام احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت پر ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس مہینے کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اور آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے بہت ساری بدعات اور خرافات میں پڑے ہوئے۔ ہمیں اور آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے نہ جانے کون کون سے خرافات اس مہینے کے اندر ایجاد کر لیے ہیں، اسے ہی ہم نے دین سمجھ لیا ہے اور اس پر ہی ہم اور آپ عمل پیرا ہیں۔ خصوصاً 15 شعبان کو نہ جانے کون کون سی بدعات کو انجام دیا جاتا ہے جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، احادیث کے اندر ان کا کوئی تذکرہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ایسے ایسے خرافات اور بدعات کو انجام دیا جاتا ہے۔
15 शाबान की रात को देखें, लोग उस रात को ईद के तौर पर मनाते हैं, उस रात को लोग खुशियां मनाते हैं, उनके घरों में पकवान बनते हैं, महफिलें कायम की जाती हैं। उस रात को खुसूसन लोग इबादतों का एहतमाम करते हैं। जिन्होंने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी होती है, उस रात को खुसूसी तौर पर तहज्जुद की नमाज की अदायगी करते हैं और इस रात को महफिलें कायम करके उस रात की फजीलतों को बयान किया जाता है। ऐसी फजीलतें जो कुरान व हदीस से साबित नहीं है, अगर हम और आप कुरान व हदीस का मुताला करें तो 15वीं शाबान की रात के सिलसिले में जितनी भी रिवायतें मौजूद हैं, सिर्फ 2 रिवायतें ऐसी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। बकिया तमाम की तमाम हदीस ज़ईफ़ हैं, मौजू हैं, मन गढ़ंत हैं, लोगों की अपनी बनाई हुई है। वो 2 हदीसें कौन सी हैं? एक तो हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की तरफ देखता है और अपने बंदों में से तमाम लोगों को माफ कर देता है सिवाय मुशरिक और उस इंसान के जिसके दिल में कीना कपट मौजूद हो। सिर्फ 2 लोगों को छोड़ करके, मुशरिक और कीना परवर लोगों को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को बख्श देता है। इसी तरह दूसरी हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान की रात को अपने बंदों की तरफ नजर डालता है, मोमिनों को माफ कर देता है, मुशरिकों को और ढील दे देता है और जिस इंसान के दिल में कीना कपट मौजूद हो उसे छोड़ देता है, यहां तक कि वो अपने दिल को साफ कर ले। ये 2 रिवायतें 15वीं शाबान की रात के सिलसिले में सही सनद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और इनके अलावा जितनी भी फजीलतें बयान की जाती हैं इस रात की, कोई भी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ये तमाम की तमाम अहादीसें लोगों की अपनी बनाई हुई हैं, मन गढ़ंत है, मौजू और ज़ईफ़ रवायतें हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर अमल करें। इन दोनों हदीस के अंदर अगर हम और आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत को बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमाता है और ये मग़फ़िरत अगर हमारे अंदर 2 चीज़ें पाई जाएं, हम शिरक ना करने वाले हों, हमारे दिलों में कीना कपट ना हो, तो हमारी और आपकी मग़फ़िरत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फजीलत के अंदर हम और आप दाखिल होंगे, हमें वो फजीलत मिल जाएगी। उसके लिए हमें और आपको किसी ख़ास इबादत का एहतमाम करना हमारे और आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो हमारे यहाँ एहतमाम होता है, लोगों के यहाँ की इस रात को एहतमाम किया जाए इबादतों का, तहज्जुद की नमाज का और न जाने कौन कौन सी इबादतें, इन तमाम इबादतों का एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया है और ना हमें करने का हुक्म दिया है। इसलिए हमें और आपको इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह शाबान की दिन का रोज़ा रखना ये भी हमारे यहाँ बहुत आम है। लोग 15 शाबान को खुसूसी तौर पर रोज़ा रखते हैं, ना तो उससे पहले उन्होंने रोज़ा का एहतमाम किया होता है, ना उसके बाद उनके यहाँ रोज़ों का एहतमाम होता है, सिर्फ 15 शाबान का रोज़ा रखते हैं और ये बहुत बड़ी फजीलत की बात समझते हैं। हालांकि ये चीज़ किसी भी तरह जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि हम और आप किसी दिन को ख़ास करके रोज़ा रखें। 15 शाबान को ख़ास करके रोज़ा रखना ये हमारे और आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दिन को ख़ास कर इबादत के लिए ख़ास करने से मना फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन के सिलसिले में फरमाया, वला तखुस्सु यौमल जुमअति बिसियामिन इल्ला अन यकूना फी सौमिन काना यसूमुह, कि तुम जुमे के दिन को रोज़े के लिए ख़ास ना करो, जुमे के दिन ख़ास तौर पे रोज़े का एहतमाम ना करो, इल्ला है कि तुम में से कोई शख्स ऐसा हो जो नफली रोज़ों का एहतमाम करता हो और जुमे का दिन उन तारीख़ों में आ जाए, उन दिनों में आ जाए तो रोज़ा रख सकता है। मसलन कोई इंसान हर महीने की 14-15 तारीख का रोज़ा रखता है, 13, ये 3 चीज़ें, ये 3 दिनों का रोज़ा रखता है, उन 3 दिनों में अगर जुमे का दिन भी आ जाए तो आप रोज़ा रख सकते हैं। या किसी और मुनासिबत से मसलन मुहर्रम का रोज़ा रखना है, जुमे का दिन आ गया तो उसमें रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन हम और आप खुसूसी तौर पर जुमे का रोज़ा रखें, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया, जिससे बात साबित होती है कि किसी दिन को ख़ास करके रोज़ा रखना यह किसी भी तरह जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर जायज़ होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन के रोज़े से हमें और आपको मना नहीं फरमाते, क्योंकि हफ्ते के दिनों में सबसे अफजल दिन अगर कोई है तो वो जुमे का दिन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन हमें और आपको रोज़ा रखने से मना किया। इससे बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि हम और आप किसी दिन को ख़ास नहीं कर सकते। लिहाजा 15 शाबान को खुसूसी तौर पर रोज़ा रखना हमारे और आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम और आप मुसलसल रोज़ा रखते आ रहे हैं, हमारा ये मामूल रहा है कि हम हर महीने में जो अय्याम बीज हैं उनका रोज़ा रखते हैं, तो इस महीने के अंदर भी हम और आप 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रख लें। हम और आपने शाबान के महीना शुरू होने से होते ही नफली रोज़ों का अहतमाम शुरू कर दिया है, कई रोज़े हमने रख लिए हैं, तो इस तारीख को भी हम और आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन हम और आप तमाम रोज़ों को छोड़ दें, कभी रोज़ा ना रखें, खुसूसी तौर पर आकर सिर्फ 15 शाबान का रोज़ा रखें, यकीनन ये बहुत गलत चीज़ है, इससे हमें और आपको परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह शाबान की 15 तारीख को लोग ख़ास दुआओं का अहतमाम करते हैं।
लोगों के यहाँ ये गलत तसव्वुर मौजूद है कि ये शाबान की जो 15वीं रात है, ये रात फैसलों की रात होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन बहुत जो अहम फैसले हैं वो फैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है लोगों के बारे में कि आइंदा आने वाला साल में कौन कौन से काम और कौन से उमूर अंजाम दिए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों का फैसला इस रात में किया जाता है। ये लोगों के दरमियान तसव्वुर मौजूद है। और इसकी दलील के तौर पर सूरह दुखान की वो आयतें पेश करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम की। और इस आयत करीमा के अंदर जो मुबारक रात का तज़किरा है, कहते हैं इस मुबारक रात से मुराद शाबान की 15वीं रात। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। उस मुबारक रात से मुराद शाबान की 15वीं रात हो ही नहीं सकती। अगर हम और आप उस आयत करीमा के अंदर गौर करें तो हमें और आपको मालूम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाजिल किया। और हम और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि कुरान मजीद शाबान के महीने में नहीं बल्कि रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हम ये रमज़ान का ही महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया। तो जब कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल किया तो वो मुबारक रात शाबान के महीने में कैसे आ सकती है? हरगिज़ नहीं आ सकती। वो लिहाजा ये जो मुबारक रात है जिसके बारे में इस आयत करीमा के अंदर जिक्र किया गया है, जिसके बारे में बयान किया गया है कि उस रात को लोगों के फैसले किए जाते हैं, अहम फैसले लिए जाते हैं, ये रात रमज़ानुल मुबारक की में रात है और वो लैलतुल क़द्र की रात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया। तो ये चीज़ है, ये अहमियत जो लैलतुल क़द्र की थी, लोगों ने उठा करके उसे 15वीं शाबान की रात पर रख दिया और यहाँ उसकी फजीलत को बयान करते हुए लोग खुसूसी दुआओं का अहतमाम करते हैं। यकीनन ये बहुत गलत चीज़ है, एक गलत रिवाज है जो हमारे और आपके दरमियान राइज हो चुका है। हमें और आपको इससे एहतराज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दुआओं का अहतमाम ना करें, दुआ एक इबादत है, यकीनी तौर पर हमें और आपको दुआ करना चाहिए। हमें और आपको ज़िंदगी के अपने तमाम लम्हात में हर रोज़ हर दिन जब भी हमें और आपको मौका मिले दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। लेकिन हम और आप खुसूसी तौर पर इस नीयत से कि ये रात फजीलत वाली रात है, मुबारक रात है, इस रात में दुआएं की जाएं, इस नीयत से हमें और आपके लिए, हमारे और आपके लिए दुआ करना किसी तरह जायज़ और दुरुस्त नहीं हो सकता। हमें और आपको इससे बचना चाहिए। इसी तरह इस रात के अंदर लोग खुसूसी तौर पर कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं। हम और आप अगर देखें तो इस दिन, इस रात में कब्रिस्तान जो हमारे और आपके मोहल्ले में है वो रोशन होता है। लोग वहां भीड़ लगाकर मौजूद होते हैं। कब्रिस्तान इस रात को आबाद होता है। लोग खुसूसी तौर पर जाकर के इस रात में अपने उन रिश्तेदारों के लिए जो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और ये समझते हैं कि ये रात मग़फ़िरत की रात है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस रिवायत के ज़रिया ये लोग दलील मान करके इस रात को मग़फ़िरत की दुआएं करने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, वो रिवायत, वो हदीस ज़ईफ़ है, सही नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर से गुम पाया। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मुझे ये शक हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरी बीवियों में से किसी बीवी के पास तशरीफ़ ले गए। फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए आपके पीछे निकली तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहें आसमान की तरफ किए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग रहे। कहती हैं जब मैं वहाँ पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करके कहा कि आयशा, ये शाबान की 15वीं रात है, इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर उतरता है और लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, लिहाजा मैंने सोचा कि इन वफ़ात पा चुके लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ। ये हदीस जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बयान की जाती है, ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस ज़ईफ़ है। हाँ, इसी तरह की जो एक वाक़या है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से साबित है, सही हदीस है, लेकिन उस हदीस के अंदर 15वीं शाबान का तज़किरा नहीं है। जिस रिवायत के अंदर 15वीं शाबान का तज़किरा है वो रिवायत ज़ईफ़ है, साबित नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीस साबित नहीं है। लिहाजा उस हदीस को दलील मान करके अगर हम और आप 15वीं शाबान की रात को खुसूसी तौर पर कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो यकीनन हम और आप अपने दीन के अंदर एक नई चीज़ ईजाद करते हैं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तुम नुहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ुरूहा, कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना कर दिया था, लेकिन मैं अभी तुम्हें इजाज़त देता हूँ, कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत तुम्हें तुम्हारी आखिरत की याद दिलाती है। कब्रों की ज़ियारत तुम्हें तुम्हारे मौत की याद दिलाएगी, तुम्हें अपना अंजाम याद आएगा, तुम उससे इबरत हासिल करोगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया है कि
کہ ہم قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن خاص نہیں کیا ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ کسی دن کو خاص نہ کریں، ہمیں جب بھی موقع ملے ہم قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں موجود مرحومین کے لیے، وفات پا چکے لوگوں کے لیے ہم اور آپ مغفرت کی دعائیں کریں، لیکن خصوصی طور پر کسی رات کا اہتمام نہ کریں۔ ہماری اور آپ کی یہ نیت ہرگز نہ ہو کہ یہ رات مبارک رات ہے، فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، لہذا ہم اس رات کو جا کر کے وہاں دعائیں کریں، زیارت کریں، یہ ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس رات کے سلسلے میں بہت سے مسلمانوں کے ہاں ایک بدعقیدگی یہ بھی موجود ہے کہ اس رات کو ان کے جو اعزاء اقربا وفات پا چکے ہیں ان کی روحیں ان کے گھروں میں تشریف لاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اس رات کو عمدہ پکوان بناتے ہیں، ان کے ان اعزاء اقربا کو جو پکوان پسند ہوا کرتے تھے وہ پکوان بنا کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ وہ روحیں آئیں گی اور کھائیں گی۔ یقیناً یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے جو مسلمانوں کے اندر نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ یا یقین رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جو انسان وفات پا چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ روحوں کا ایک مقام ہے، ان کا ایک ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے روحوں کے لیے علیین اور سجین جیسی جگہ بنا کر کے رکھی ہیں۔ جو نیک روحیں ہیں علیین میں موجود ہوتی ہیں، جو بری روحیں ہیں وہ سجین میں موجود ہوتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں نعمتوں سے سرفراز ہوتی ہیں، سجین میں جو روحیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہوتی ہیں، ان کا وہ ٹھکانہ ہے، وہاں سے دنیا کے اندر واپس آنا کسی روح کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ بدعقیدگی جو آج مسلمانوں کے اندر ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ چیز ہماری اور آپ کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح اس رات کو لوگ ایک خصوصی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جس نماز کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ 100 رکعت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس طرح ملا کر کے ہر رکعت میں 10 مرتبہ اور 100 رکعت میں 1000 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس نماز کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی نماز جس میں 1000 بار سورہ اخلاص پڑھا گیا ہو۔ یہ نماز ایسی نماز ہے جو بعد کے زمانے میں تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد تقریباً یہ نماز وجود میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ لہذا ان تمام طرح کی جو خرافات ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصی طور پر اس شعبان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اس مہینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، ہم اور آپ ان روزوں کا اہتمام کریں، نوافل روزوں کا اہتمام کریں۔ جو سنت کا طریقہ ہے اس پر ہم اور آپ عمل کریں۔ جو بدعات اور خرافات لوگوں نے رائج کر دیے ہیں، شیطان اور شیطان صفت انسانوں نے ہماری اور آپ کی گمراہی کے لیے جو طریقے ایجاد کیے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اسے سمجھیں، اسے جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام طرح کی برائیوں، تمام طرح کی بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔